नमस्कार, एन स्टार न्यूज में आपका स्वागत। अब खबर नालागढ़ से। जहां सब्जी मंडी के वर्चस्व की लड़ाई अब खूनी गैंगवार में तब्दील हो चुकी है। नालागढ़ के मशहूर पहलवान और कारोबारी विजय कुमार राणा पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया है। तलवारों और रॉडों से लैस दर्जन भर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नालागढ़ में दहशत का ये मंजर मंगलवार शाम 5:30 पर देखने को मिला। सल्लेवाल निवासी विजय राणा अपने भतीजे के साथ सैनी माजरा सब्जी मंडी जा रहे थे। तभी राजपुरा चौराहे पर 2 गाड़ियों में आए करीब 1 दर्जन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। हमलावरों ने पहले फायरिंग की और फिर तलवारों, रॉडों और डंडों से विजय राणा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। विजय बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। उनकी जान तब बची जब एक बहादुर महिला ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। इस बर्बरता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजय राणा ने बताया कि पिछले 7-8 साल से सब्जी मंडी का काम कर रहा हूं। पंजाब के नामी गैंगस्टरों से वीडियो कॉल पर जान से मारने की धमकियां मिली। सैनी माजरा और राजपुरा मंडी पर कब्जे की लड़ाई में स्थानीय लोग और गैंगस्टर मिले हैं। पुलिस को बताया लेकिन कोई एक्शन नहीं। विजय राणा के परिवार का दावा है कि इसमें पंजाब के गैंगस्टरों का हाथ है, लेकिन पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर गैंगस्टर कनेक्शन से साफ इनकार किया है और क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन मंडी पर कब्जे को लेकर चल रही ये जंग अब जानलेवा साबित हो रही है, जिस पर पुलिस की जांच जारी है। मंगलवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਆਇਆ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ थे किਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ थे। 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੱਲੇਵਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਾਸ। 2 ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਮਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ ਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰੀਨੈਣ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੌਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ। जब ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲੂੰਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ और सामान लेके कसी, हथौड़ा, तेजधार हथियार, राड़ा, मतलब बहुत सामान था सर। अचानक ही हमला करता। ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਥੇ, ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ 2 ਵਾਰ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2017 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2017 ਦੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟਾਈਮ ਭਿੰਦਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਔਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਤੰਗ ਕਰਨੇ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਪਿਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਥੇ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ थे, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ, ਉਸਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਪੀਰ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਿੰਦਰੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿंग करके धमकियां दवाइयाँ, कहना मार देंगे, गोलियां चला देंगे, ये कर देंगे, ठीक है आपको ठोक देंगे, आपने मंडी एक करनी है, उधर मंडी लगानी है, यहाँ मंडी नहीं लगेगी। अच्छी बात मतलब कि ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜੇ ਹੈ।
पर ये बंदे सानू टारगेट कर रहे हैं, सानू मारने की कोशिश की जा रही है। हुण पता नहीं प्रशासन कित्थे सुत्ता वा, जद कि असीं पहला ही इनके खिलाफ 3-4 कंप्लेंटां जा चुकियां। साडे बंदे जिहड़े ने मारे, जिन्हें कुट्टे इन्हां ने, उन्होंने इस पर कंप्लेंटां कीतियां होईयां, पर सरकार क्या कर रही है, कित्थे सोई मैं तो खुद नहीं पता लग रहा। पहला भी इन्होंने साडी मंडी में घुसे, न्यूनागढ़ मंडी में घुस के इन्होंने बंदे ने बहुत बुरी तरीके नाल पिटिया वा, जिहदी साडे पास वीडियो भी थी, सारा कुछ था। और उत्थे फिर गोलियां भी गिरी भी थी, वो भी पता था, सब नूं पता भी हाँ ठीक है उत्ते क्या होया क्या नहीं। पर हुण सब कुछ जानदे होए भी सरकार हुण अपने आप अक्खां बंद कर लवे, कानून सानू कानून पर विश्वास है, पर जद हुण कोई साडा कुछ सुन नहीं रहा। हुण इस केस पे गुमराह किया जा रहा, तुहानू पता ही है। एक बंदा मेरे नाल, मेरा भतीजा, असीं 2 बंदे, असीं अपने इलाके में आ रहे, बाहर ते बंदे आकर के साडे पर हमला किया जा रहा, जो कि बंदे बाहर ते है। साडा इलाका, साडे घर है उरे, वो बंदे उरे क्या करना चाहते थे। ये गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ किस हिसाब से लगी, सानू मारने खातर लगी थी। हुण केस नूं एक नई बदलने की कोशिश की जा रही है। बाकी जनता नूं खुद नूं पता है क्या सच है क्या झूठ है, असीं क्या बोलना। मेरे नाल इन्नी मार कटाई की, इन्ना बुरा हाल किया इन्होंने। अज मैं तो इंसाफ चाहता, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा किसी नूं नहीं। मैं तो अज भी किसी नूं, मेरी बदले की भावना नहीं है मेरे दिल में। मैं तो अज भी इंसाफ चाहता, मैनूं कानून ते भरोसा है। कौन कौन लोग? एक गड्डी थी जी वाइट कलर की, HP 19C और 6834 नंबर का गड्डी था। और दूसरा था एक परविंदर था, पिंदा नाम, पिंदा पिंदा कहते। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਬਾਊ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੇਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤਾਂ, ਮਲਕੀਤ ਤਾਂ, और ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ थे इन्होंने। बाकी मतलब अनपछाते बंदे बहुत थे जिन्हें मैं नहीं जानता। कुछ गड्डियां बिच बैठे थे, कुछ आले दुआले खड़े हुए थे मैं मारने खातर, घेरने खातर भी। अगर इधर नूं भजदा था असीं इधर कर देना, उधर भजदा उधर कर देना। मतलब पता नहीं किस तरह रब ने रख लिया कि जनानी बेचारी ने बहुत लड़ाई की, बेचारी ने सानू बचाया। तो मैं हूँ यही चाहता कि चलो सानू इंसाफ मिले। मेरा कोई ऐसा ना मेरा गंडासा लगा ना कुछ ऐसा, जब हमारे पास था ही नहीं, हमें मौका ही नहीं दिया गया। तो पहले तो ये बात है कि अगर वो हमारे इलाके में आ रहे हैं, वो क्या करने के लिए आए थे यहाँ पे, उनका क्या था यहाँ पे। जो है मुद्दा कुछ और है, ठीक है, हमें मारने की कोशिश की जा रही है और मुद्दा को जो है कन्वर्ट किया जा रहा है कि हाँ ऐसे है, क्रॉस केस है, फलाना है। क्लियर तो है, बाहर से गाड़ियां आ रही है हमें मारने के लिए। मेरा नाम देवेंद्र पाल है, मैं विजय कुमार का बड़ा भाई हूँ। तो मेरा भाई तकरीबन घर से निकला था, 5 बजे के करीब घर से निकला। पहले मंडी में गया, जो कि राजपुरे मंडी हमारी लगती है। वहां जाने के बाद फिर वो उनकी दूसरी मंडी लगती है सैनी माजरे में, उस दिन लगी हुई थी। तो वहां से जैसे ही निकला, 500 मीटर दूर जाके एक स्कॉर्पियो उसके पीछे लग गई। और वहां पे एक चार यानी कि चौराहा बनता है, वहां पे गाड़ी पीछे से और एक गाड़ी आगे उन्होंने घुसा दी, यानी कि दोनों ने घेर लिया। और घेर के एक लगता है 10-12 बंदे वहां से निकले और मारपीट करना शुरू कर दी उन्होंने उनके साथ। और जिसमें मेरा भाई पूरी तरह से घायल हो गया। उसकी दोनों टांगों में टांके लगे हैं, एक टांग फ्रैक्चर है और हाथ में भी है, और एक साइड से थोड़ा हाथ भी कट गया है, बहुत बुरी तरह से घायल है। और इन्होंने अपनी गाड़ी के साथ, मेरा जो भतीजा था, जब वो बाहर गाड़ी से निकला तो इन्होंने इतनी जोर से गाड़ी मारी उसके साथ कि वो खेत में जाकर गिरा। और इतनी जोर से गिरा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम है और पीछे रीढ़ की हड्डी में टंके भी लगे हुए हैं और उसके पट्टों में भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। तो मेरा भाई पिछले 7-8 साल से मंडियों का काम कर रहा है। तो ये पिछले 2-3 साल से जो हमारे यहाँ के कुछ लोकल और कुछ बाहर के बदमाश लोग हैं, ये पूरी मंडियों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो ये पिछले 5-6 साल से काम करता था। तो एक बारी तो इन्होंने ये मंडियां खोली थी, और खोलने के बाद हमारी दुकानों पर ढोल लेके भी आते थे और ये बिना मतलब से तंज कसते थे। तो उसके बाद भाई ने अपनी मंडियां फिर से लेके फिर लगानी शुरू कर दी। लेकिन उन मंडियों में जाके ये बार बार उपद्रव करते हैं। जो वहां पे मंडियां लगाते हैं किसान लोग, उनको जाके तंग करते हैं, मारपीट करते हैं। उन किसानों ने भी इनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की है और पहले भी इनकी 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है, जो हमने FIR दर्ज की है। कम से कम 4 से 5 FIR इनके ऊपर हमने भी दर्ज कराई है। और जो मंडियां लगाने के लिए आते हैं उनको मार पिटाई की भी करवाई है। ये धमकियां भी देते हैं बाहर के बंदों से, जैसे दूसरी स्टेट के बंदों को गुंडे बदमाश है जो, उनसे भी धमकियां दिलवाते हैं, हमें दूसरों के फोन से भी दिलाते हैं। तो अभी हमारे इलाके में अगर हम ही नहीं अपना काम कर सकते, और भी घर के पास जो कि मेरे घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में, तो आप ही सोच लो कि कितनी बदमाशी होगी। हमें पुलिस वालों पर विश्वास है
और सरकार पर विश्वास है कि हमारी बात को सुनेगा, इस मंडियों की प्रॉब्लम को हल करेगा। या तो मंडियां बिल्कुल बंद होनी चाहिए, अगर लगनी चाहिए तो दोनों की लगनी चाहिए, और एक दूसरी की मंडी में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और ये जो वारदात हुई है, इसमें जो वीडियो आया है, और उसके बाद जब हम अपने भाई को हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लेके जा रहे थे, तो वो स्कॉर्पियो भी हॉस्पिटल में थी और उनके बंदे भी हॉस्पिटल में ही घूम रहे थे। इलाज के दौरान हमने वहाँ बंदों को देखा था। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, उनमें उन सभी की पहचान हो जाएगी। 5-6 बंदों को हम जानते हैं, बाकियों के हम नहीं जानते हैं वो कहाँ से आए थे, और वो मार के चले गए, लेकिन वो हॉस्पिटल में आए थे। हम सरकार से यही विनती करते हैं और सरकार पे विश्वास है कि वो सही निर्णय करेगी और इन अपराधियों को जल्द से जल्द जेल के अंदर डालेगी। हमारी बस यही प्रार्थना है।